آداب عرض ہے۔ MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ علاقے مرٹھواڑہ کو دشکار مکت کرنے اور موجودہ حالات کا جائزہ لینے راجیہ سبھا رکن ڈاکٹر بھاگوت کراڑ نے بلائی گوداوری کھورے کارپوریشن کے افسران کی اہم میٹنگ۔ گوداوری اسٹڈی گروپ کی رپورٹ پر اٹھائے کئی سوال۔ وزیر اعلیٰ سے اس رپورٹ کو قبول نہ کرنے کا کیا مطالبہ۔ جلد ہی عوامی نمائندوں کے ہمراہوں سے ملاقات کا بھی کیا اعلان۔ گزشتہ کئی دنوں سے ریلوے اسٹیشن علاقے سے گزر رہی پائپ لائن سے رس رہا تھا پانی۔ MCN پر خبر دکھاتے ہی غافل افسران آئے حرکت میں اور شروع کروایا پائپ لائن کی مرمت کا کام۔ اقلیتی طلبہ میں مسابقتی امتحانات سے متعلق بیداری پیدا کرنے مائنارٹی پینشنرز ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقد کیا گیا تربیتی ورکشاپ۔ ماہرین نے حکومت کی جانب سے چلائی جانے والی اسکیمات اور کیریئر گائیڈنس سے متعلق بھی کی رہنمائی۔ آئندہ بھی اس طرح کے ورکشاپ منعقد کرنے کا ایسوسی ایشن کے ذمہ داران نے کیا عزم۔ اور شہریان میں ٹریفک قوانین سے متعلق بیداری پیدا کرنے ٹریفک برانچ کی جانب سے منایا جا رہا ہے ٹریفک اویئرنیس منتھ۔ مختلف پروگرامز منعقد۔ آج شہر میں نکالی گئی بائیک ریلی۔ شہریان کو ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل کرنے کا دیا گیا پیغام۔ خبریں تفصیل سے۔ علاقہ مرٹھواڑہ کو دشکار مکت بنانے اور یہاں کے موجودہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے راجیہ سبھا رکن ڈاکٹر بھاگوت کراڑ نے گوداوری مہا منڈل کے افسران کی ایک اہم میٹنگ طلب کی، جس میں تبادلہ خیال کے بعد انہوں نے الزام لگایا کہ گوداوری اسٹڈی گروپ کی جانب سے گمراہ کن رپورٹ تیار کی گئی ہے، لہٰذا انہوں نے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس سے مطالبہ کیا ہے کہ اس رپورٹ کو ہرگز قبول نہ کیا جائے۔ انہوں نے یہ بیان بھی دیا کہ وہ اس ضمن میں مرٹھواڑہ کے تمام عوامی نمائندوں کو ساتھ لے کر جلد ہی ریاستی وزیر اعلیٰ سے ملاقات کریں گے۔ علاقے مرٹھواڑہ کو سوکھا مکت کرنے اور یہاں کی پسماندگی دور کرنے کے لیے حکومت گوداوری اسٹڈی گروپ کی رپورٹ ہرگز قبول نہ کرے۔ اس کے لیے وہ علاقے مرٹھواڑہ کے تمام عوامی نمائندوں کو ساتھ لے کر ریاستی وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گوداوری اسٹڈی گروپ کی رپورٹ میں دراصل مرٹھواڑہ کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے۔ اضافی پانی کا استعمال، باشیبی بھون، بغیر اریگیشن کے ریزرویشن پانی کی عام تقسیم سے متعلق جو رپورٹ تیار کی گئی ہے اس میں علاقے مرٹھواڑہ کے ساتھ سراسر ناانصافی کی گئی ہے، اس لیے حکومت اس رپورٹ کو ہرگز قبول نہ کرے۔ اس میٹنگ میں گوداوری کارپوریشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر تیرفنوار SE گولی، مرٹھواڑہ جل سمردھی پرتشٹھان کے سینئر واٹر ایکسپرٹ ڈاکٹر شنکر راؤ ناگرے، انل پاٹل، سیکریٹری رماکانت پلکنڈوار، کے امبڑگاؤکر، جے سنگھ ہیرے اور ڈاکٹر راجا رام رمگیر بھی موجود تھے۔ اجنتا ایلورا انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کے دوسرے دن بھی شائقین کی بھیڑ امٹ پڑی تھی۔ عیاں رہے کہ مراٹھواڑہ کے فلم شائقین کے لیے دنیا بھر کی معروف فلموں کے تعارف کے لیے یہ 10واں عالمی اجنتا ایلورا فلم فیسٹیول ہمارے شہر میں منعقد کیا گیا ہے۔ فیسٹیول کے دوسرے دن شائقین کی پرہجوم حاضری دیکھی گئی۔ مہوتسو کے اس دوسرے دن 2 اہم ترین ماسٹر کلاس منعقد کیے گئے۔ ڈائریکٹر اور اداکار تگمانشو دھولیا نے اپنی ماسٹر کلاس میں اپنی زندگی کے سفر سے متعلق جانکاری دی اور فلمی دنیا کے اپنے تجربات اور چیلنجز اور کامیاب فلمیں بنانے کے طریقہ کار سے متعلق رہنمائی کی۔ اسی طرح آشوتوش گواریکر نے بھی اجنتا ایلورا فلم فیسٹیول کو مراٹھواڑہ کے لیے فائدہ مند بتلایا اور کہا کہ اس فیسٹیول کی رہنمائی کے سبب اس میدان سے دلچسپی رکھنے والوں کو اب ممبئی پونے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انہوں نے مراٹھواڑہ کے لوگوں سے متعلق کہا کہ یہاں خوب ٹیلنٹ چھپے ہوئے ہیں اور انہوں نے اگر درجہ دار و معیاری فلم سازی کی تو اس کا فائدہ یقیناً علاقہ مراٹھواڑہ کو ہوگا۔ فلم فیسٹیول میں آئے اداکاروں اور شائقین نے فیسٹیول کے انعقاد پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ نوتن وساحت کی DP پلان میں حائل مکانات 2 روز پہلے جالنا میونسپل انتظامیہ نے منہدم کر دیے تھے، جس پر متاثرہ خواتین نے آج راستہ روکو احتجاج کیا۔
वाज़ेह हो कि पिछले 2-3 रोज़ में जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने शहर में नाजायज़ कब्ज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ अंजाम दी हैं। इसी कार्रवाई में नूतन वसाहत इलाके में नाजायज़ कब्ज़ों पर बनाए गए कुछ घर भी ढा दिए गए। ताहम ढा दिए गए इन घरों के मकीन ख़वातीन ने कॉरपोरेशन की इस कार्रवाई के खिलाफ रास्ते पर उतर कर एहतजाज किया है। इन ख़वातीन ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इस कार्रवाई की मुखालिफत व मजम्मत की और यहाँ वाक़े सतकर कॉम्प्लेक्स के सामने के रोड पर ठिया आंदोलन किया। उन लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया कि ज़रूरत से ज़ायद अराज़ी की गिनती करके जानबूझकर उनके घर तोड़े गए हैं। इन ख़वातीन ने मेन रास्ते पर बैठकर कमोबेश आधा घंटा ये ठिया आंदोलन किया है, जिसके सबब ट्रैफिक में रखना भी पड़ा। नाही, नगर परिषदेचे लोक ते साफ म्हणतात इकून ऑर्डर आला तिकून ऑर्डर आला कोणी ऑर्डर आला तर आम्हाला काय माहिती। आम्ही गरीब लोक तुम्ही डायरेक्ट आले जेसीबी उभी केली समोर म्हणलं तर आम्ही काय करायचं, कुठे जायचं आम्ही। आमची मागणीची तुम्ही पहिली जी मार्किंग ठेवली तेवढी मार्किंग ठेवा, त्याच्या पुढे घुसू नका। आम्ही देऊ नाही ना तुम्हाला, तर चला आमची गलती झाली, आम्ही नालीच्या तरी आम्ही नालीच्या आतमध्ये आहे, नालीच्या बाहेर नाहीत आम्ही। तुम्ही रोड बांधकाम केला, पहिले म्हणले गट्टू नाही टाकायचे, गट्टू कॅन्सल केले, आता अचानक कसं काय गट्टू आले। बरं गट्टू आले तर गट्टूला आम्ही 3 फूट जागा दिली, अजून म्हणे पुढे नाली, अजून त्याच्या पुढे नाली करायची, खंबे टाकायचे, लाइटिंग लावायची। म्हणजे काय तुम्हाला इथं काय विमान उतरायचं का, तुम्ही काय इथं राहायला येणार आहे का। परभनी की मशहूर दरगाह हज़रत तुराबुल हक की उर्स तकारीब का सिलसिला 1 फरवरी से 15 फरवरी तक जारी रहेगा। इस दौरान यहाँ दरगाह मैदान पर लगाई जाने वाली नुमाइश और दुकानों से वक्फ इंतज़ामिया को 2 करोड़ 67 लाख रुपयों की आमदनी हुई है। ये इत्तला वक्फ बोर्ड इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। वक्फ इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी दरगाह हज़रत तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह का उर्स जोशो खरोश से मनाया जाएगा। चूँकि बुजुर्गान दीन ने हमेशा ही से वहदानियत और इंसानियत और भाईचारे का दर्स दिया है, इसलिए लोग उनके इस दुनिया से पर्दा कर लेने के बावजूद उनकी दरगाहों पर पहुंचकर रूहानी फैज़ हासिल करते हैं। बिलखुसूस उनकी उर्स तकारीब हिंदू मुस्लिम यकजहती का बेमिसाल कारनामा होता है। हज़रत तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकारीब में भी परभनी ही नहीं बल्कि पूरे इलाके मराठवाड़ा से लाखों की तादाद में लोग शरीक होते हैं। इस मौके पर दरगाह मैदान पर नुमाइश और दुकानें लगाई जाती हैं। हर साल की तरह इस साल भी वक्फ इंतज़ामिया की जानिब से ज़ायरीन के दरमियान मुख्तलिफ सकाफ़ती और खेल के मुकाबले रखे जा रहे हैं। नुमाइश में लगाई जाने वाली दुकानों, खिलौनों और झूलों में लाइट डेकोरेशन, पार्किंग का इंतज़ाम करने की जिम्मेदारी देने के लिए टेंडर्स मंगवाए गए थे, जिसके लिए वक्फ इंतज़ामिया को 3 टेंडर्स मौसूल हुए थे, जिनमें से रचना इलेक्ट्रिकल्स नामी एजेंसी का टेंडर मंजूर किया गया है और इंतज़ामिया को एजेंसी से 2 करोड़ 67 लाख रुपयों की आमदनी हुई है। ये इत्तला वक्फ बोर्ड के CEO सैयद जुनैद ने दी है। तालुका पैठन के गांव पाडली में मुरम की गैर कानूनी हमलो नकल करने वालों के खिलाफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करते हुए 3 हाईवा ट्रक और 1 JCB जब्त कर लिया। जब्त किए गए इस साजो सामान हाईवा व JCB की मालियत 1.5 करोड़ रुपये बतलाई गई है। पैठन के तहसीलदार सारंग चौहान की धमाकेदार कार्रवाई के सबब रेत मुरम व मिट्टी के माफिया के दरमियान खलबली मच गई है। तफसीलात के मुताबिक पाडली गांव में गैर कानूनी मुरम निकासी करने वाली ये टोली कुछ अरसे से दिन दहाड़े उधम मचाते हुए मुरम का गैर कानूनी गोरख धंधा चला रही थी। उसकी रात शिकायत साकिनान ने शोबा महसूल में की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई अंजाम दी गई। इस तरह की इत्तला तहसीलदार सारंग चौहान ने दी है। मुरम निकासी जारी होने की इत्तला मुखबिर ने सारंग चौहान को दी थी, जिसकी बिना पर उन्होंने महसूल के स्क्वाड के साथ छापा मारा और मज़कूरा मुद्दे माल जब्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान JCB ड्राइवर JCB लेकर फरार हो गया था, ताहम स्क्वाड ने उसका ताक़ुब करके उसे धर लिया तो JCB छोड़कर वो फरार हो गया। जब्त किए गए हाईवा व JCB तहसील ऑफिस कंपाउंड में जमा कर दिए गए हैं। ये कार्रवाई जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी और SDM नीलम बाफना की रहनुमाई में तहसीलदार के स्क्वाड ने अंजाम दी है। काल बिडकीन परिसरामध्ये पाडळीजवळ महसूल पथकाने 3 हायवा आणि 1 JCB अवैध मुरमूत करताना पकडले आणि त्यांना तहसील कार्यालयात लावलेले आहे। ही संपूर्ण कारवाई जिल्हाधिकारी श्री दिलीप स्वामी सर आणि उपविभागीय अधिकारी श्रीमती नीलम बापना मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली तहसील कार्यालयाने घेतली आणि त्याला एक आणून या ठिकाणी लावलेला आहे। एकंदरीत ह्या कारवाईमध्ये जवळपास 1.5 ते 2 कोटी रुपयाचा मुद्देमाल आम्ही जप्त केलेला आहे। त्यानंतर यांच्या दंडात्मक कारवाईच्या माध्यमातून जवळपास 17-18 लाख रुपये शासनाला जमा होतील आणि अशी कोणती घटना तालुक्यामध्ये होत असेल तर ती खपून घेतली जाणार नाही
जे कोणी अवैध उत्खनन करणारे व्यक्ती असतील किंवा गट असतील त्यांना ही लास्ट वॉर्निंग आहे की त्यांनी कोणत्या प्रकारचे अवैध उत्खनन करू नये. त्या संदर्भात आम्ही आमच्या तालुक्यामध्ये रात्रपाळीची आणि दिवसासुद्धा पथकं तैनात करण्यात आलेली आहेत. हे पथक दिवस रात्र गस्त घालत आहेत आणि नागरिकांना जर कुठं अशी खबर मिळाली उत्खनन होत आहे तर तात्काळ आमचा संपर्क साधावा आणि त्यामध्ये कारवाई करू. रेलवे स्टेशन इलाके में मौजूद सेल टैक्स ऑफिस के सामने से गुजर रही पानी की पाइपलाइन गुज़िश्ता कई दिनों से फूटी हुई थी और उससे यौमिया लाखों लीटर पानी यूं ही रास्तों पर बहकर ज़ाय हो रहा था, जिससे राहगीरों और व्हीकल सवारों को भी परेशानी का सामना था. मगर म्यूनिसिपल इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं था. लिहाजा गुज़िश्ता रोज़ MCN पर हमने ये खबर दिखाई, जिसका असर हुआ और आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के अफसरान ने यहाँ पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया. नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हमने रेलवे स्टेशन इलाके की तस्वीर कशी करके उसे अपनी न्यूज़ में शामिल किया था और बताया था कि गुज़िश्ता कई दिनों से यहाँ से गुजर रही पाइपलाइन फूटी हुई है, जिससे लाखों लीटर पानी सड़क पर बहकर यूं ही ज़ाय हो रहा है और राहगीरों व व्हीकल सवारों को किन किन परेशानियों का सामना है. हमारी न्यूज़ का असर हुआ और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के अफसरान व मुलाजिमीन हरकत में आ गए और आज ही यहाँ पर पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया गया. ज्योति विद्या मंदिर के एक साबिक तालिब इल्म असलम खान, जिन्होंने हिंदी फिल्म राज इश्क में मरकज़ी किरदार निभाया है, उन्हें स्कूल इंतज़ामिया ने कैंटीन डे पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मदऊ किया था, जहां स्कूल की हेडमास्टर और दीगर असातिज़ा ने असलम खान का पुरतपाक इस्तकबाल किया. ज्योति विद्या मंदिर के जिम्मेदारान ने स्कूल के कैंटीन डे प्रोग्राम में अपने साबिक तालिब इल्म फिल्म स्टार असलम खान को मेहमान खुसूसी की हैसियत से मदऊ किया, जहां मिडल स्कूल की प्रिंसिपल सुनिंदा चौहान की सदारत में इस्तकबालिया तकरीब रखी गई, जहां प्राइमरी स्कूल की सदर मुदर्रिस स्मिता शिवनेकर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और अपने स्कूल को विजिट देकर यहां ज़ेर तालीम तलबा की रहनुमाई करने पर फिल्म स्टार असलम खान का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए. असलम खान ने भी तलबा से खिताब किया और उन्हें बताया कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की. उन्होंने तलबा को नसीहत की कि वो दिल लगाकर पढ़ाई करें और अपनी ज़िंदगी का मकसद आज ही तय करके उसे हासिल करने के लिए मनसूबाबंद तरीक़े से मेहनत करें. साथ ही उन्होंने तलबा और अपने असातिज़ा से दरख्वास्त की कि उनकी फ़िल्म राज इश्क अपने अफराद ख़ानदान के साथ ज़रूर देखें, जो हमारे शहर में आइंदा 25 जनवरी को रिलीज़ होने जा रही है. इसी तरह मारूफ स्कॉलर मधुकर अन्ना वैद्या ने भी तलबा की रहनुमाई की. उसके बाद मेहमानों के हाथों तलबा में स्कूल स्टेशनरी तकसीम की गई और मिडल स्कूल की सदर मौलमा सुनंदा चौहान ने सदारती खिताब किया और तलबा को नसीहत की कि असलम खान की ज़िंदगी उन सभी के लिए मशअले राह है. इस मौके पर फिल्म के एसोसिएट डायरेक्टर चंद्रशेखर सतीश के पाटिल, मकामी फ़नकार गणेश घुसड़े और कासिम मेमन भी मौजूद थे. प्रोग्राम की निज़ामत स्कूल की टीचर विद्या भगत ने की, जबकि शुक्रिया की रस्म ताइडे मैडम ने अदा की. इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में शिव प्रसाद काइंदे, बागुल मैडम और दीगर ने अहम रोल अदा किया. मी लाडका स्टुडंट होतो ना, मी एक खूप लाडका विद्यार्थी होतो या शाळेतला आणि मला डान्सची पहिल्यापासून आवड आहे आणि माझ्या टीचर्सनीच मला या संधी दिल्या. गॅदरिंगमध्ये माझा एक डान्स मी स्वतः सिद्ध करून ठेवायचा आणि टीचर्स पण मला नाही करायचे, मला नाही म्हणून, तर मी तिथून सुरू केलेलं आहे आणि आता आपल्या शाळेचं नाव आणि स्वतः माझ्या मुलीचं नाव संपूर्ण महाराष्ट्रातली मी स्टेट लेवल इंटरनॅशनल लेवलपर्यंत घेऊन जाणार आहे. आणि त्यासाठी मला आज माझ्या शाळेत मला बोलवलं. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट तर मला आज येऊन इथं असं वाटलं की मी माझ्या शाळेत रंगलो आणि माझे टीचर्स माझ्यासोबत आहे, म्हणजे संपूर्ण जग माझ्यासोबत आहे, सगळं देश माझ्यासोबत आहे. मला कोणाची फिकर नाही आहे, म्हणजे माझ्या पाठीमागं सपोर्ट आहे माझ्या विद्यार्थ्यांचा आणि माझे टीचर्सचा, आहे का नाही? आदर्श महिला बैंक घोटाले के मुतासरीन ने साबिक MP इम्तियाज़ जलील की क़यादत में आज से ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर भूख हड़ताल शुरू की है. आइए देखते हैं इस ज़िमन में साबिक MP इम्तियाज़ जलील क्या कहना चाहते हैं.
देखिए, ये जो आदर्श का जो मामला है, इसमें कई 100 करोड़ रुपए और कई हज़ार ऐसे लोग हैं जो गौर गरीब लोग हैं, उनका पैसा फंसा हुआ है। पिछले 1.5 साल से हम लोग ये आंदोलन चला रहे हैं। ठीक है, पैसे की शुरुआत मिलना शुरू हुई है, 10,000, 20,000, 25,000 तक मिलना शुरू हुआ है, लेकिन कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ है आदर्श की जिसका अगर लिलाव अगर हो जाता है, जिसका ऑक्शन अगर हो जाता है, तो उन्हें आज ये मौका नहीं मिलता कि यहाँ पर आकर आमरण उपोषण भूख हड़ताल के ऊपर बैठे। ये जितने भी लोग बैठे हैं, अगर आप इनसे उम्र पूछेंगे तो 80% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र है तो 65-70 के ऊपर की है। उसमें आप ऐसे लोगों को रास्ते के ऊपर बिठा रहे हैं कि बगैर खाना पिए यहाँ पर। मेरा एक सवाल प्रशासन से, पुलिस से ये है कि क्या ज़रूरत है कि आपको जब आपके ऑफिस के सामने लोग इकट्ठा होते हैं तो आपको कर्तव्य, आपका फ़र्ज़ याद आता है आपको? इससे पहले क्यों नहीं? जबकि सरकार ने परिपत्रक जारी किया है, नोटिफिकेशन जारी किया है, GR जारी किए हैं, जिसके अंदर ये बताया गया है कि किसी भी पद संस्था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर पैसा डूबता है तो वो लोगों तक पैसा पहुंचाने के अंदर 1 महीने के अंदर क्या काम करना चाहिए, 2 महीने के अंदर क्या काम करना चाहिए। यहाँ पे तो खेल चल रहा है। सरकार को लगता है कि ये गौर गरीब लोग हैं, इनकी तरफ से कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। कितने लोग लड़ेंगे? 48 लोग ऐसे हैं जो मर चुके हैं अभी तक, और ये मरे नहीं है, इनकी हत्या हुई है। और इस हत्या के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार है, यहाँ के कलेक्टर जिम्मेदार है, यहाँ के पुलिस कमिश्नर जिम्मेदार है, DDR जिम्मेदार है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स है वो लोग सब जिम्मेदार है। इन सब के ऊपर हत्या का गुनाह नोंद होना चाहिए, वरना 48 लोग, 6 साल की बच्ची, अपना बाप उसका इलाज नहीं करवा सका, आज वो बच्ची मर चुकी है। इसमें कौन है? कोई ना कोई तो जिम्मेदार होना चाहिए इनके लिए। अभी फाइनल अल्टीमेटम है सर आपका, अभी जिम्मेदार कौन है? अभी ये फाइनल अल्टीमेटम रहेगा आमरण उपोषण? देखिए, हमारी तो कोशिश यही है कि सरकार को सिर्फ एक नोटिफिकेशन निकालना है। कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो लोग ख़रीदने के लिए तैयार है, जो लेना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ सरकार की इसके अंदर मंशा क्या है, प्रशासन क्यों खामोश बैठा है, खामोशी से क्या ये प्रॉपर्टीज़ पीछे के दरवाजे से बिकवाना चाहते हैं जैसा पहले हो चुका है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब देखेंगे, उनकी मीटिंग चल रही है, मीटिंग के बाद वो क्या फैसला करते हैं, उसके बाद हमारी आगे की रणनीति तय करेंगे। सर, ये लेट लतीफ़ी का जिम्मेदार कौन है आपकी नज़र में? ये लेट लतीफ़ी का जिम्मेदार कौन है? देखिए, सारे लोग उसके अंदर जिम्मेदार है जो बड़ी बड़ी कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए हैं, चाहे वो SDM हो, कलेक्टर साहब हो, पुलिस कमिश्नर हो, DDR हो, ये सभी लोगों की जिम्मेदारी। और साथ ही साथ जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो है, जिसकी जिम्मेदारी है, वो भी खामोश बैठा हुआ है। आपने सैफ अली खान के ऊपर हमले का जिक्र किया है। देखिए, मैंने ये बात बताई है कि आदर्श के 48 डिपॉजिटर्स है, ठेवीदार है, जिनकी जान चले गई, जो नेचुरल डेथ की वजह से नहीं मरे हैं, उनकी हत्या की गई है। और ये लोगों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज इस मुल्क के अंदर क्या चल रहा है उसका बेहतरीन उदाहरण ये है कि सैफ अली खान जैसे एक्टर को जख्म आ जाती है, चोट लग जाती है, तो उसकी खबर पूरे देश भर के मीडिया के अंदर 24 घंटे चलाई जा रही है, और ये लोग हर रोज़ मर रहे हैं। 48 लोगों की जान चली गई है, इसके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। तो सिर्फ सैफ अली खान में और इनमें फ़र्क ये है कि वो एक फिल्म स्टार है, पैसे वाला है, और ये लोग गरीब है, लेकिन इनका एक एक रुपया इनकी मेहनत की और कष्ट की ज़िंदगी भर की कमाई है। मसाबक़ती इम्तहानात और दीगर कोर्सेज से मुताल्लिक़ अक़लियती तलबा की रहनुमाई के लिए माइनॉरिटी पेंशनर्स एसोसिएशन की जानिब से एक वर्कशॉप हज हाउस में गुज़िश्ता रोज़ रखा गया। असलम खान की सदारत में मुनक़िदा इस सेमिनार में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सादिक बागवान ने हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमात और कैरियर प्लानिंग से मुताल्लिक़ रोशनी डाली। UPSC कोच आदिल अजीज़ ने तलबा को UPSC और दीगर मसाबक़ती इम्तहानात की तैयारी के लिए मुख्तलिफ टिप्स दी। IET सब्जेक्ट एक्सपर्ट अब्दुल-समद ने तलबा को टेक्निकल एजुकेशन और डिजिटल स्किल्स से मुताल्लिक़ मुफीद मालूमात फराहम की। इस सेमिनार को कामयाब बनाने में मज़कूरा एसोसिएशन के सदर मोहम्मद ज़कीउद्दीन सिद्दीकी, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल बारी पटेल, बानी शेख मसूद, जॉइंट सेक्रेटरी मजीद खान, ट्रेजर काजी ज़ुबैर अहमद और दीगर मेंबरान ने अहम रोल अदा किया। इस सेमिनार में मुख्तलिफ अक़लियती तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम
9वीं 10वीं और अंडर ग्रेजुएट तलबा के अलावा कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और तालीमी इदारों के जिम्मेदारान बड़ी तादाद में शरीक हुए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मैकेनिकल डिपार्टमेंट को मुस्तहकम बनाने के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर 4 नई गाड़ियां खरीदी गई हैं, जिसका लोकार्पण गुज़िश्ता रोज़ किया गया। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर गाड़ियों के मामले में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को मुस्तहकम बनाने की गर्ज से 3 जेसीबी, 1 डीजल ब्राउजर और 1 कोंडवाड़ा वैन खरीदी गई, जिनका लोकार्पण गुज़िश्ता रोज मैकेनिकल डिपार्टमेंट में किया गया। इस मौके पर मैकेनिकल सेक्शन के कारगुजार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अमोल कुलकर्णी, रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर DK पंडित, UG शिरसाट, जेसीबी कंपनी के प्रशांत चौधरी और मैकेनिकल सेक्शन के दीगर मुलाजमीन भी मौजूद थे। संत एकनाथ शक्कर कारखाना पैठन के 18,000 मेंबर हैं, जिनमें कारखाने की जानिब से कम कीमत पर शक्कर की तकसीम शुरू की गई है। कम कीमत पर शक्कर की ये तकसीम गुज़िश्ता रोज़ जुमेरात को कारखाने के हिसार में चेयरमैन सचिन घायाड़ के हाथों शुरू की गई। इस मौके पर दीगर डायरेक्टर्स आबा साहब मोरे, एकनाथ नौले, भाव साहब पिसे, दिगंबर गोरडे, सीनियर डायरेक्टर विक्रम घायाड़, कचरू बोबड़े, दत्ता वाकड़े, कैलाश तोपकरी, गणेश पवार, कैलाश फासाटे की खुसूसी मौजूदगी थी। संत एकनाथ शक्कर कारखाने के 18,000 मेम्बरान के अलावा फौत हो चुके मेम्बरान के वरसा के अलावा कारखाने को गन्ना देने वाले दीगर किसानों को भी 10 किलो शक्कर फी मेंबर निहायत कम कीमत पर दी जा रही है। तालुका भर के तमाम मेम्बरान शक्कर हासिल करने के लिए कारखाना इहाते में मौजूद संत एकनाथ मंगल कार्यालय आकर शक्कर हासिल करें। इस तरह की अपील चेयरमैन सचिन घायाड़ और डायरेक्टर्स बॉडी ने की है। वाज़ेह हो कि संत एकनाथ कारखाने में अपने मेम्बरान को पहली बार ये कम कीमत शक्कर दी जा रही है। संत एकनाथ सहकारी साखर कारखाना सचिन साहेबांनी हा योग्य रीतीने चालवला आणि शेतकऱ्यांना व सभासदांना योग्य रीतीने साखर वाटप व योग्य रीतीने पैसे वाटप करत आहे, त्याबद्दल मी सचिन साहेबांचे आभारी मानतो। लाभ घ्यावा आणि आपल्या संत एकनाथ सहकारी साखर कारखान्याच्या साखरेचा गोडवा जो आहे तो आपण सर्वांनी चाखावा। तसेच जे पण मयत सभासद असतील त्यांच्या एका वारसदाराला, जो थेट वारसदार असेल त्या एका वारसदाराला या ठिकाणी मयत सभासदांच्या घरच्या वारसदाराला सुद्धा आपण साखर वाटप या ठिकाणी करणार आहोत। तरी सर्व शेतकऱ्यांना आव्हान आहे की आपण या संधीचा फायदा घ्यावा। संधीचं आपण या ठिकाणी साखर कारखान्याची साखर जी सर्वांनी घेऊन जावी। हर साल की तरह इस साल भी 1 जनवरी से 31 जनवरी के दरमियान ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानिब से खुसूसी बेदारी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत आज शहर में ट्रैफिक ब्रांच की जानिब से एक व्हीकल रैली निकाली गई, जिसे DCP नितिन बगाटे ने हरी झंडी दिखाई। अयार है कि शहर में हर साल 1 जनवरी तक 31 जनवरी के दरमियान ट्रैफिक ब्रांच की जानिब से रास्ता सुरक्षा अभियान मनाया जाता है। इस मुहिम के तहत शहर में बाइक रैली का इनेकाद किया गया। ये रैली पुलिस कमिश्नर ऑफिस से निकलकर मिल कॉर्नर, कार्तिकी सिग्नल, महावीर चौक से क्रांति चौक तक गई और वहां से वापस पुलिस कमिश्नर ऑफिस पर आकर इख्तिताम को पहुंची। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार, डिप्टी कमिश्नर नितिन बगाटे, ACP प्रशांत स्वामी, डिप्टी कमिश्नर शिलवंत नांदेड़कर समेत ट्रैफिक ब्रांच के ACP धनंजय पाटिल और ट्रैफिक ब्रांच के दीगर सभी अफसरान मुलाजिमीन मौजूद थे। आपला जवळपास महिनाभर रक्षा सुरक्षा अभियान हे आपल्या शहरामध्ये ट्रॅफिक ब्रांचकडून राबवलं जात आहे। त्यांनी गेल्या दिवसापासून बरेचसे कार्यक्रम या अनुषंगाने आयोजित केलेले होते आणि त्याचाच एक भाग म्हणून आज एक ट्रॅफिकची रॅली अवेअरनेसची सुरक्षेबाबत ही आयोजित केलेली होती। प्रामुख्याने आपल्याकडे जवळपास मागच्या वर्षी 550 अपघात झाले होते, त्याच्यामध्ये जवळपास 182 लोकांनी आपले प्राण गमावलेले आहेत। तर रस्त्यावरती आपण वाहन चालवत असताना 2 व्हीलर किंवा 4 व्हीलर जर सर्व ट्रॅफिकच्या रहदारीच्या नियमांचे पालन केले सर्व नागरिकांनी, तर निश्चितच आपला जो जीव आहे तो वाचू शकतो। हेल्मेट घालणं हे आवश्यक आहे। हेल्मेटमुळे कुठलाही अपघात झाला तर आपल्याला गंभीर इजा होण्यापासून, आपलं नुकसान होण्यापासून वाचू शकतात। त्याचबरोबर आजकाल नायलॉन मांजा किंवा काचेचा मांजा देखील वापरला जातो, त्याच्यामुळे देखील आपलं सुरक्षा होऊ शकते। त्याचबरोबर जे काही तुमचे नियम आहेत त्यांनी प्रत्येक वेळी दंड लावून आणि फाईन लावून हे काही उपयोग नसतो। प्रत्येक नागरिकांनी आपल्या मुलांना देखील जबाबदारीने शिकवलं पाहिजे की रहदारीचे नियम पाळले पाहिजे। निश्चितच कारण की प्रत्येकाचा प्राण आणि व्यक्ती गेल्यानंतर त्या कुटुंबाचं आणि त्या लोकांचं आणि
अनुषंगाने समाजात खूप मोठं नुकसान होत असतं. प्रत्येकाचा जीव हा खूप महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे आपण सर्वजण शहरातील नागरिक रहदारीचे नियम पाळूयात आणि प्रत्येकजण आपली सुरक्षेची जबाबदारी बरोबर घेऊयात. ही माझी सगळ्यांना एक आव्हान आहे. मकर संक्रांति के त्यौहार के दिन उस्मानपुरा इलाके में एक BCS के तालिबे इल्म का बेरहमी से कत्ल कर दिए जाने का मामला मंजर आम पर आया था. इस गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है. पुलिस ज़राए के मुताबिक मकतूल का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसी के खालाजाद भाई ने किया है. अयार है कि जिला भीड़ के मंजले गांव के मजाफात से तालीम के हुसूल के लिए शहर आए 19 साला तालिब इल्म प्रदीप विश्वनाथ निपटे को फ्लैट में कत्ल कर देने का वाक़या गुज़िश्ता रोज़ पेश आया था. पुलिस को इस कत्ल की सुरागरासानी में बड़ी कामयाबी हाथ आई है, जिसमें पता चला है कि मकतूल के साथ ही फ्लैट पर रिहाइश पजीर उसके खालाजाद भाई ही ने उसे कत्ल किया है और इस कत्ल की वजह महज 65,000 रुपये की रकम बनी है. इस तरह की मालूमात DCP नितिन बगाटे ने दी है. तफसीलात के मुताबिक मकतूल का भाई उसके मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेला करता था और इस गेमिंग के ज़रिए उसने 1 लाख रुपये भी कमाए थे. तहम मकतूल प्रदीप ने इसी रकम में से 65,000 रुपये उसी गेमिंग में गंवा दिए. इसी पैसे के लिए उसके खालाजाद भाई ने उसे कत्ल कर दिया. कत्ल के बाद पुलिस ने तहकीकात और तफ्तीश के लिए 6 स्क्वाड तैयार किए थे. ACP रंजीत पाटिल के स्क्वाड ने और उस्मानपुरा थाना के इंस्पेक्टर अतुल यरमे की इस कत्ल की गुत्थी सुलझाने में अहम रोल अदा किया है. उस्मानपुरा पोलीस स्टेशन येथे 14 तारखेला संध्याकाळी झालेला एका विद्यार्थ्याचा मर्डर तो आमच्या उस्मानपुरा पोलीस स्टेशनचे PI श्री अतुल यरमे, ACP श्री रंजीत पाटील आणि त्यांच्यासोबत आमच्या टोटल 5 पोलीस स्टेशनच्या टीम आणि एक क्राईमची टीम अशा आमच्या 5 ते 6 अधिकारी आणि आमचे अंमलदार यांनी खूप हुशारीने या प्रकरणाचा छडा लावलेला आहे. या प्रकरणामध्ये मैताचा भाऊ विधी संघर्षित बालक ह्याने ऑनलाईन गेमिंग ॲप एव्हिएटर यात जो मयत आहे प्रदीप यांनी ते पैसे हरलेले होते, एकूण तब्बल 65,000 रुपये. त्या पैशाच्या देवाणघेवाणीच्या वादावरून विधी संघर्षित बालकाने प्रदीप या मुलाचा त्याच्या राहत्या रूममध्ये त्याचा निर्गुणपणे खून केलेला आहे. आणि पोलिसांच्या चौकशीमध्ये विविध अँगल आम्ही तपासले 5 ते 6 टीमने आमच्या. त्यामध्ये मैताचे त्याच्या कॉलेजच्या मुलांसोबत झालेले भांडणं तो एक अँगल तपासला गेला आणि आर्थिक बाबत असल्यामुळे त्याच्या रूममेटची चौकशी करण्यात आली. तर ते चौकशी करता करता त्याचा मावस भाऊ विधी संघर्षित बालक यानेच तो खून केला आहे असं पोलिसांच्या तपासामध्ये निष्पन्न झालेलं आहे. औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर डेक्कन ओडिसी टूरिस्ट एक्सप्रेस खड़ी थी. एक नौजवान इस ट्रेन के इंजन पर चढ़ गया और इलेक्ट्रिक शॉक लगने के सबब वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया, जिसे इलाज की गर्ज से घाटी अस्पताल भिजवाया गया है. अयार है कि डेक्कन ओडिसी एक सियाहती ट्रेन है. ये ट्रेन जब आज सुबह औरंगाबाद स्टेशन पर मुसाफिरों को लेकर आई और स्टेशन पर खड़ी थी कि एक लाउबाली किस्म का नौजवान इस ट्रेन के इंजन पर चढ़ गया तो उसे बिजली का शदीद झटका लगा और वो ज़ख्मी हो गया. स्टेशन अमले ने फौरी यहाँ की बिजली सप्लाई बंद की और उसे इंजन से नीचे उतारकर इलाज के लिए घाटी अस्पताल भिजवाया. इस तरह की इत्तला रेलवे स्टेशन के ज़राए से मौसूल हुई है. ज़िला जालना के अंबड़ में बिजली सप्लाई कंपनी का एक एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 40,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया. ये कार्रवाई जालना डिवीज़न के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने अंजाम दी है. अयार है कि यहाँ ठेकेदार के नस्ब करदा ट्रांसफार्मर का 4 महीने का बिल निकाल कर देने के मुआवजे में 40,000 रुपये की रिश्वत मांगने वाले एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ACB के स्क्वाड ने रंगे हाथ धर लिया. इस इंजीनियर ने गुत्तेदार से 50,000 रुपये का मुतालबा किया था, लेकिन बातचीत के जरिए ये मामला 40,000 रुपये में तय हुआ था. एन 40,000 रुपये वसूल करने के वक्त घात लगाकर जालना के ACB के स्क्वाड ने रिश्वतखोर इंजीनियर को धर लिया और उसके खिलाफ अंबड़ पुलिस थाने में मुतालिका कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है. जलगांव के एक तालिबे इल्म को उसके वालिद ने पढ़ाई न करने पर फटकार लगाई थी, जिससे नाराज़ होकर वो घर छोड़कर चला गया था. जलगांव से लापता हुए इस तालिबे इल्म को वेदांत नगर पुलिस ने ढूंढ निकाला और बहिफाजत
اس کے والد کے سپرد کر دیا۔ घर से नाराज होकर भाग खड़े हुए इस तालिब इल्म का नाम जयेश संजय पाटिल साकिन रामेश्वर कॉलोनी जलगांव बतलाया गया है। 15 जनवरी को दोपहर 12 बजे के करीब उसके वालिद संजय पाटिल ने पढ़ाई को लेकर नाराजगी जताते हुए उसे डांट डपट की थी, जिस पर साहिबजादे जयेश को इस कदर गुस्सा आया कि वो घर में किसी को कुछ बताए बगैर ही घर से निकलकर चला गया था। बादअज़ां उसके मोबाइल नंबर के टावर लोकेशन से उसकी मौजूदगी का पता लगाया गया और वेदांत नगर थाना के जांच स्क्वाड के पीएसआई वैभव मोरे, कांस्टेबल सुलाने और मुड़े की कोशिशों से लापता जयेश को रात 8 बजे के करीब शहर के कोकनवाड़ी चौक से तहवील में लेकर बादअज़ां उसे बहिफाजत उसके वालिद संजय काशीनाथ पाटिल के सिपुर्द कर दिया गया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इलाके मराठवाड़ा को दुष्काल मुक्त करने और मौजूदा हालात का जायजा लेने राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़ ने बुलाई गोदावरी खोरे कारपोरेशन के अफसरान की अहम मीटिंग। गोदावरी स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट पर उठाए कई सवाल। वजीर आला से इस रिपोर्ट को कबूल न करने का किया मुतालबा। जल्द ही अवामी नुमाइंदों के हमराहों से मुलाकात का भी किया ऐलान। गुज़िश्ता कई दिनों से रेलवे स्टेशन इलाके से गुजर रही पाइपलाइन से रिस रहा था पानी। एमसीएन पर खबर दिखाते ही गाफिल अफसरान आए हरकत में और शुरू करवाया पाइपलाइन की मरम्मत का काम। अक़लियती तलबा में मुसाबिक़ती इम्तिहानात से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करने माइनॉरिटी पेंशनर्स एसोसिएशन की जानिब से मुनक़िद किया गया तरबियती वर्कशॉप। माहिरीन ने हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात और कैरियर गाइडेंस से मुताल्लिक़ भी की रहनुमाई। आइंदा भी इस तरह के वर्कशॉप मुनक़िद करने का एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान ने किया अज़्म। और शहरियान में ट्रैफिक कवानीन से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करने ट्रैफिक ब्रांच की जानिब से मनाया जा रहा है ट्रैफिक अवेयरनेस मंथ। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। आज शहर में निकाली गई बाइक रैली। शहरियान को ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करने का दिया गया पैगाम। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।